A very good morning to all the participants of this webinar. Friends, on behalf of the DTRTI Lucknow, we welcome you to this 2 days webinar. And as you are aware, this webinar is going to be on BRICS, Daksh, and Microsoft Teams. The BRICS software has been recently launched, and it has been made available to the employees of UPG for utilization for cadre management. You're all very well aware about Daksh, because Daksh is a training process management software, and that's been working for the last 1.5 years or so, and helping us to plan and implement our training processes. Apart from that, there is Microsoft, and Microsoft Teams helps us deliver webinars. And as you are seeing, particular webinar is also being delivered through Microsoft Teams platform. So friends, we are very glad to welcome you to this webinar once again. And in these 2 days time, we will be helping you to learn the processes of the wonderful processes that have been implemented in which right now our entire department is using or trying to use Microsoft Teams for delivering webinars, and therefore Microsoft Teams has become a very, very important platform to deliver the webinars right now. But as we are seeing that sometimes we do face certain issues while delivering webinars, so we'll be discussing all those issues during the Microsoft Teams presentation. Friends, we are very glad to have with us Shri Anag Goyal sir, who is the creator of BRICS, and I'll be coming to his introduction a little later on. We welcome him, and a very good morning to sir and to all the other participants of this webinar. So let me first introduce you. Hello, thank you. Hello to all of you. Faculty that is there in DTRT Lucknow for you. Friends, we are headed by our ADG sir, P. Vivek Kumar, who is an IRS officer of 1992 batch. And thereafter, we have two officers of the level of additional director and joint director, Shri Himanshu Kumar Pandey sir and Shri Surendra Mohan sir. We have three deputy directors, myself, Shri Nagendra Dikshit ji, and Shri Rajesh Tiwari. Apart from them, we have additional assistant directors in the form of Srimati Archana Chaudhary, Shri Ajay Tripathi, and Shri Ram Ratan Chaudhary, who has recently joined us, and of course, Srimati Poonam Verma, who has been with us for the last 1.5 years or so. Then, of course, we have in the DTRTI, we have our administrative officer, Srimati Lakshmi Shukla. We have our team of income tax inspectors, Sri Manoj Kumar Vishwakarma, and he is looking after this particular course. And Srimati Saima Khan is looking after this course as far as the duties of tax assistant is concerned. We have the regular security people, the cleanliness people, housekeeping people, and other people who are trying to maintain the institute in spick and span manner. And of course, our classroom management team consisting of Mukesh Bahadur and our Sharma ji,
and of course Rajneesh, without whom it is very difficult for us to conduct or deliver any webinar to the level that is required to deliver. Friends, as Sri Anurag Goyal sir had been a ADG of the DTRTI, we feel greatly pleasure to welcome him on any platform of training that we deliver. And this particular platform, sir, is going to deliver the first lecture also. And therefore, we are very thankful to him and honored to have him with us. Friends, that is our introduction. And of course, we all know you by name and by faces. We are seeing you here. And the wonderful video pictures that we are seeing of you. मीटिंग चल रही है Making us very proud and मीटिंग चल रही है अभी glad to see your faces. Of course, I'm seeing a few masks, and that is perhaps not avoidable, and that needs to be done. But do show me your faces from time to time, and I'll be glad to see you once again. With those words, friends, we move forward, and it is my proud privilege to introduce you to our ADG, sir, Shri Vivek Kumar, who has recently joined the DTRTI team as its head. The DTRTI Lucknow team has been blessed with his presence, and sir has recently joined us, and therefore we are very honored to have him with us, and we look forward to his words of advice, his suggestions, his conversations, and therefore for the benefit of you all, it is my proud privilege to invite sir to speak his mind at this point of time. Sir. Dear friends, I am privileged to be here to welcome Shri Anurag Goyal. अनुराग गोयल जी हमारे कलीग ही नहीं, हमारे बचपन के मित्र हैं. We have been sailing together in the department. Anurag Goyal ji is a multifaceted personality. NJRS जो डिपार्टमेंट का बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, वो टेक ऑफ नहीं कर रहा था. Then the then chairman asked Mr. Anurag Goyal, who came back from deputation, to come and head the project. उस प्रोजेक्ट में जो उनकी मेहनत है, वो उस समय मैं दिल्ली में ही पोस्टेड था, तो आई हैव सीन हिम गोइंग थ्रू दैट ग्रिल. प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा. डिपार्टमेंट ने उसको समझा और फाइनेंस मिनिस्टर्स अवार्ड अनुराग गोयल जी को मिला प्रोजेक्ट के लिए 2017 में. कुछ बहुत ही छोटे समय के लिए अनुराग गोयल जी एनएडीटी में रहे और उसके बाद
8-10 महीने के लिए प्रिंसिपल सीसी लखनऊ ऑफिस में थे। अपना समय व्यर्थ ना करते हुए और इन्होंने यहाँ पे दक्ष और प्रिंसिपल सीसी ऑफिस में वृक्ष करके 2 बहुत ही उम्दा सॉफ्टवेयर लिखे। दोनों सॉफ्टवेयर्स में सॉफ्टवेयर तो हम लोग देखिए आईटीडी और आईटीबीए वगैरह भी देखते आ रहे हैं, लेकिन उसकी यूजेबिलिटी बाय द पर्सन्स हु आर सपोज टू लॉग ऑन टू इट। जब मैं यहाँ आया तो हमारे यहाँ ईच एंड एवरी स्टाफ एंड ऑफिसर वाज सो हैप्पी यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर कि इट इज सो इजी टू यूज एंड यूजर फ्रेंडली। तो आई रियली congratulate and I'm very happy to have Anurag Goyal with us today to give his views and opinions on Vraksh and Daksh. Thank you, dear Anurag, for accepting the invitation. Thanks a lot. Yeah, thank you. Thank you very Vivek. much, sir, for your kind words. Friends, we are straight away launching into our first lecture of the course of the webinar. And as sir has already told you a little bit about Shri Anurag Goyal, sir, I would like to further add to that. Friends, Shri Anurag Goyal, sir, is an officer of 1994 batch of the Indian Revenue Service. Sir has been a project implementer throughout his career with the Income Tax Department, not only for the Income Tax Department, but for other departments also, wherever he has been posted on deputation. I clearly remember that sir was in the Department of Electronics also. Sir was also implementing a project, a big project in perhaps the Municipal Corporation of Delhi, if I remember that correctly, sir. And when he came to our department, came back from deputation, sir has authored Daksh, which is a training process management software. And it started with DTRTA Lucknow, and it has been accepted, widely accepted by all the DTRTIs, and it is being implemented in all the DTRTIs. The NAT has also welcomed the software because it is very user-friendly. It not only helps the course team to organize its course and automate number of processes, it also helps to the employees also to get the course material and to interact with the course team in various ways. The Daksh discussion forum is also a very important part of the Daksh software, where all the employees of the department are able to exchange views, ask questions, get answers, and advise others and get advice on any kind of topic. And therefore, then, of course, sir went on to write the Vraksh software. So Vraksh is a very organic kind of a tree, as you would see, and it has automated number of processes of cadre management for the principal CCIT Lucknow. And we are from the responses that we are getting, it helps employees in a very big way, and also helps the administration of the principal CCIT office to make it easier for the employees to understand many things and to also to automate many of the processes that they are having. There is kind of synergy between Vraksh and Daksh also, and that is evolving with a growing time. So friends, it is my proud privilege, and of course sir has written the NJRS. NJRS was the first one on which sir got the FM award, which is given every year to the sterling examples of performance which have created the best practices in the department. So friends, Shri Anurag Goyal is not somebody whose name you are not aware of. Sir is very well known to everybody, at least in the UP East, and because of NJRS throughout the country. And therefore, we are in a position where we are feeling very proud to welcome sir
with us, and to request him to kindly begin his presentation demonstration, and I'm sure that we are all going to be benefited by it. So, थैंक यू सर. बस मैं केवल एक बार पूछूंगा, एम आई ऑडिबल? अरविंद मिश्रा सर. yes, sir, you're audible, sir. Thank you, sir. So my sincere thanks to Vivek and Arvind Mishra sir for inviting me and for saying such kind words. So यूपी ईस्ट में तो मेरा अपना घर ही है, so ये it's always a pleasure to talk to people from UP East. My request to all the participants that this is more of a interactive session and थोड़ा सा difficulty होती है टीम्स पे और ऑनलाइन उसमें इंटरेक्ट करने में. क्लासरूम में बहुत आसान है, मैं पूछ सकता हूँ, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है और लोग हाथ उठा के प्रश्न पूछ सकते हैं. यहाँ पे ही हाथ उठाने की एक सुविधा है. इस टाइम मुझे दिख रहा है मिस्टर निशांत सिंह ने हाथ उठाया हुआ है, शायद शुरू में टेस्ट करते हुए कर दिया होगा. मेरे को एट अ ग्लांस सारे 102 के आसपास पार्टिसिपेंट्स मुझे दिख रहे हैं. सबको मैं नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिसका हाथ उठा हुआ हो उसको स्पेसिफिकली उनका क्वेश्चन पूछ के आंसर करने की कोशिश करूं. अभी मैंने मिस्टर निशांत सिंह का जो रेज हैंड था उसको बंद कर दिया है. तो आई होप आपको रेज हैंड का सुविधा सामने दिख रही होगी बिल्कुल, जो स्क्रीन पे आता है रेज हैंड. सो अगर कोई रेज हैंड करेगा सो आई विल स्टॉप टू आस्क हिज क्वेश्चन. सो other than that, I request everyone to switch off their microphones and you can have a look at what I am trying to share. So having said that, this particular session मेरे समझ से बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, क्योंकि इसमें कुछ पढ़ाई as such नहीं है, कुछ समझना नहीं है. This is more of an introduction to something of utility for every one of us. Now, अभी सॉफ्टवेयर के बारे में काफी चर्चा हुई, NJRS और ये सब. तो why सॉफ्टवेयर? मतलब आई एम एन इंजीनियर, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह सॉफ्टवेयर बना दिया जाए. सॉफ्टवेयर अपने आप में एक अंत नहीं है. उसमें जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर का यूटिलिटी तभी है जब वो किसी समस्या का समाधान कर रहा हो. अगर वो केवल मैनेजमेंट को रिपोर्ट्स जनरेट करने के लिए देना है और उसमें केवल डेटा एंट्री करनी है स्टाफ को, तो उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है. अगर इंस्टेड वो डेटा अपने आप खुद ब खुद जनरेट हो रहा है जब हम कार्य कर रहे हैं और वो डेटा हम यूज कर पाए किसी तरीके से, तब तो उस सॉफ्टवेयर की कुछ महत्ता है. अदरवाइज बहुत जगह पे देखा होगा कि केवल हम डेटा एंटर करते रहते हैं ऑफिसर लेवल पे, स्टाफ लेवल पे, और उससे वापस हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्राप्त नहीं होती है. ये कुछ समस्याएं हमारे अभी जो बड़े सॉफ्टवेयर हैं ITBA वगैरह में भी है, कि टैक्सपेयर की हम इतनी इंफॉर्मेशन असेसमेंट के दौरान भरते हैं, लेकिन अगर उसी के बारे में पता करना हो तो वहां पे हमारे हाथ बंध जाते हैं. सॉफ्टवेयर हमें वो प्रदान नहीं करता है. ऑफ कोर्स उसमें कुछ डेटा प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन के रूल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन शायद इसको थोड़ा और बेहतर बनाया जा सकता था. एनीवे, इस सब्जेक्ट को छोड़ के मैं अपने प्रोजेक्ट्स की बात करूं जो मैंने शुरुआत की, तो उसमें यही सोचते हुए किया कि जो हमारा एम्प्लॉय है उसको इंफॉर्मेशन अगर कहीं पे भी स्टोर्ड है, वो ढूंढ के अगर कंप्यूटर लाके दे सकता है तो कुछ फायदा है. फॉर एग्जाम्पल NJRS का मैं और दक्ष का 2 मिनट के लिए चर्चा करूंगा. NJRS में बेसिकली सॉफ्टवेयर है और अपील्स और जजमेंट्स जो विभाग के हैं. अब NJRS में आप सब ने किसी ने यूज किया होगा, हमने किसी से भी एक भी डेटा भरने के लिए नहीं कहा है. तो उसमें डेटा आता कहाँ से है? वो डेटा, क्योंकि कोर्ट्स में कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होता ही है ना. जब अपील फाइल होती है तो या तो विभाग या टैक्स पेयर जाके कोर्ट की रजिस्ट्री में एक केस फाइल करता है, अपील, और जब उसका समाधान होता है तो वो कोर्ट अपने जजमेंट के तहत उसको वेबसाइट पे रिलीज कर देता है.
तो एनजेआरएस का फंडामेंटल फिलॉसफी जो थी वो ये थी कि डेटा क्योंकि एक बार चढ़ चुका है तो उसको दोबारा नहीं चढ़ाना चाहिए, रादर उस डेटा को इस तरीके से सम्मिलित किया जाए और एक दूसरे से लिंक किया जाए कि एट वन ग्लांस हमें सारी चीजें मिल सकें। और काफी हद तक एनजेआरएस में यही कोशिश की गई है। उसी प्रकार से जब मैं डीटीआरटीआई पहुंचा तो मुझे लगा कि हम लोग साल में करीब 50 ट्रेनिंग्स कराते हैं और कई सारे विषयों पे चर्चा करते हैं, लेकिन जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसका पर्पस क्या है? पर्पस है कि हमारे एम्प्लॉयज कुछ सीखें और वो चीज सीखें जो जिसकी उनको जरूरत हो। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि हमारे एम्प्लॉयज को क्या सीखने की आवश्यकता है, और ये कोई नहीं बता सकता एम्प्लॉय के अलावा। अगर एम्प्लॉय से हम उसका ट्रेनिंग नीड्स नहीं पूछ रहे हैं तो फिर हम क्या कर रहे हैं डीटीआरटीआई में? अपनी मन मर्जी से मैं एज एन एडीजी या अरविंद मिश्रा साहब एज अ ट्रेनर अपनी मन मर्जी से कुछ पढ़ा रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू उसी चीज की है जिस चीज की या तो विभाग को जरूरत है या एम्प्लॉय को जरूरत है। विभाग को कैसे जरूरत है? अभी नया फेसलेस स्कीम शुरू हुआ है, इसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जिसके बारे में सभी को जानकारी नहीं है, तो इस पे अगर ट्रेनिंग कर रहे हैं तो समझ में आता है। और अगर कैपिटल गेन्स या एग्रीकल्चरल इनकम या पेनी स्टॉक इस पे कर रहे हैं, हो सकता है जो ट्रेनीज आ रहे हो उनको इनकी पहले से जानकारी हो, उनको हम ट्रेनिंग क्यों करा रहे हैं। सेकेंडली, ट्रेनिंग का इम्पैक्ट क्या है? क्या ट्रेनिंग करने के बाद लोगों को उसकी जानकारी हो पा रही है, या एम्प्लॉय आता है और डिसइंटरेस्टेड तरीके से निकल जाता है? तो अगर कोई डिसइंटरेस्टेड है तो व्हाई ट्रेन दैट पर्सन एट ऑल? वी आर ऑल अडल्ट्स, वी आर ऑल प्रोफेशनल्स। तो आप लोग यहाँ पे स्वेच्छा से आए हैं, 102 लोगों की मेरे को प्रेजेंस इस टाइम दिखाई दे रही है। सो पीपल हु आर नॉट इंटरेस्टेड आर नॉट अटेंडिंग। बट इनवेरिएबली मुझे देखने को मिलता था कि सेम एम्प्लॉय बार बार ट्रेनिंग पे आ रहा है। तो कौन से वो एम्प्लॉय हैं जो कई बार आ चुके हैं, और कौन से वो एम्प्लॉय हैं जिनको साल में एक बार, साल में क्या, कई कई ऐसे एम्प्लॉय मिले जिनको 10-10 साल में एक बार भी डीटीआरटीआई आने का मौका नसीब नहीं हुआ। तो ये सब डेटा एनालिसिस अगर करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर हेल्प करता है तो वो यूजफुल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये था दक्ष के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। आई थिंक देयर इज अ सेपरेट सेशन ऑन दैट, सो उस पर मैं अभी नहीं चर्चा करूंगा। मेरे को आज कार्य दिया गया है वृक्ष के बारे में। तो दक्ष और वृक्ष बड़े सिमिलर से नाम है। दक्ष हमारी ही फैकल्टी ने किसी ने सजेस्ट किया था कि दक्ष मीन्स निपुण, एक्सपर्ट। तो ट्रेनिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, तो दक्ष के जरिए हम लोगों को एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं। और वृक्ष क्योंकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें एपेक्स पे कोई रहता है, उसके बाद ब्रांचेस रहती हैं और स्टाफ लेवल तक एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ट्री बोलते हैं, वो बनता है। उसी से ये वृक्ष सॉफ्टवेयर का नाम पड़ा। और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट? Organization comes from the word organized. We do things in an organized manner. इंडिविजुअली हम लोग अपने घर पे अपनी पर्सनल जिंदगी में अनऑर्गेनाइज्ड रह सकते हैं, बट एक ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेड है कि इट विल वर्क इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें? तो सबसे पहला कार्य बिफोर इवन लुकिंग एट टैक्सेशन इज कि हमें अपनी मैन पावर को ऑर्गेनाइज करना है। तो जब वृक्ष का कार्य शुरू हुआ, मैं सीआईटी एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम यूपी ईस्ट में, तो यही बात थी कि इस टाइम पे हमारे पास सबसे पहला काम किसी सीआईटी एडमिन का या किसी प्रिंसिपल सीसीए का होता है कि एम्प्लॉयज को सारे विभागों में, सारे जो सब विभाग हैं हमारे, एग्जामिशंस, टीडीएस, असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशन, हेडक्वार्टर्स, ऑडिट, आईटीएटी, इन सब जगह रोटेट करना है, सो दैट सबका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, प्रोफेशनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से हो। बट does any CIT administration in the country or any CCA know कि कौन से स्टाफ की कहाँ पोस्टिंग हुई है पिछले कुछ समय में? आई डाउट इट, बिकॉज इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस, एक ऑर्गेनाइज्ड डेटाबेस
कभी बनाने की चेष्टा ही नहीं हुई। ये IRS ऑफिसर्स ऑनलाइन पे जरूर हुआ, वो भी कुछ बहुत समय पहले नहीं हुआ, मुश्किल से 10 साल पहले हुआ। उससे पहले वो IRS ऑफिसर्स जो कि कुल 3-4 हजार हैं, उनके बारे में भी ये जानकारी नहीं थी। यूपी ईस्ट में करीब 1500 एम्प्लॉयज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राइवर से लेकर ITO लेवल तक। उसके बाद IRS कैडर शुरू हो जाता है। तो उसमें कौन आदमी कब एम्प्लॉय हुआ, कहाँ कहाँ पोस्टेड रहा, उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, तो उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उसको रोटेट कर सकें। तो एक फंडामेंटल डेटाबेस आपको चाहिए, और यही चीज कोशिश की गई कि वृक्ष में ये दिया जाए। बट इससे एम्प्लॉय को क्या सुविधा है? जो मैंने शुरू में कहा था, ये एम्प्लॉय को जब तक कोई सुविधा नहीं मिलेगी किसी सॉफ्टवेयर से, व्हाई शुड दैट एम्प्लॉय यूज? मैं भी अगर मेरे को कोई सॉफ्टवेयर कहा जाए कि आप इसको यूज करिए, अगर मुझे उससे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो मैं व्हाई शुड आई यूज इट? तो आज मैं कोशिश करूंगा कि आई विल जस्ट ट्राई टू टेक यू थ्रू सम ऑफ द फीचर्स अवेलेबल इन वृक्ष, एंड you should decide for yourself whether it is of any utility to you. I see one raised hand from the Daksh team here. Who is Daksh? If he can, only one hand so far. So before launching into the presentation or demonstration, I would say, there is a person called Daksh. What is that? Can he ask the question, or should I lower that hand? No. I have not heard any response, so I'm lowering that hand. So anyone who is interested in asking a question at this stage, please raise your hand. I'll request Mr. Arvind Mishra, or he himself can open his microphone and speak. So I'll take a pause for a second before I start presenting the software. Anybody who has anything to say at the beginning? Okay. We can start, sir. Okay. I'll try to show my mobile screen. So Arvind Mishra sir, केवल एक बार आप बता दीजिएगा, is my screen visible to you? Yes, sir, it is visible, sir. Okay, thank you. आप अपना माइक्रोफोन बंद कर सकते हैं। So yeah, तो वृक्ष का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले सीधे इसके फीचर्स के बारे में चलते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे इसका लैंडिंग पेज है। इसमें जितने भी कम्युनिकेशंस हैं जो हेडक्वार्टर्स करता है, वो सबसे पहले आ रहे हैं। मैं कोई भी एक कम्युनिकेशन खोल के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक, ये जो कम्युनिकेशंस फ्रॉम CCA हेडक्वार्टर्स था, इस पे एक आइटम पे क्लिक किया, तो ये सॉफ्टवेयर कहता है कि इस फाइल को कैसे खोलें। मैंने इसमें ड्राइव PDF व्यूअर को सेलेक्ट किया है। तो ये डॉक्यूमेंट खोल के दिखना चाहिए। आप, थोड़ा सा डिले है मेरे, इसमें खुल गया है, आपके स्क्रीन पे शायद अभी नहीं आया है। या तो ये डॉक्यूमेंट खुल गया है। ये शायद ये प्रमोशन ऑर्डर है जो 17 तारीख को प्रिंसिपल CC ऑफिस से रिलीज हुआ है। यही फैसिलिटी IRS ऑफिसर्स ऑनलाइन पे थी, तो वहीं से देख के ये सुविधा यहाँ पे भी दी गई है। कम्युनिकेशंस के नीचे एक टैक्स न्यूज का कॉलम है।
मैं थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन प्रोजेक्शन में थोड़ा समय लग रहा है। आई कैन सी द स्क्रीन। अभी हाँ, अब आ गया है शायद आपके स्क्रीन पे भी। अगर आप टैक्स न्यूज़ देखेंगे तो इसमें बहुत ही सेलेक्टेड टैक्सेशन के बारे में इंटरनेट से सेलेक्टेड न्यूज़ ऑटोमेटिकली आती हैं। जिसको टैक्सेशन में ज़्यादा इंटरेस्ट है वो इसको क्लिक करके खोल के पढ़ सकते हैं। मैं इसको खोल नहीं रहा हूँ। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक बर्थडेज का कॉलम है। इसका पर्पस एक्चुअली इस एप्लीकेशन को फेसबुक जैसा बनाना नहीं था, लेकिन जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं और आपके कॉलीग्स होते हैं तो कई बार हम लोग से मिस हो जाता है और लोगों को अच्छा लगता है कि अगर कोई याद करके उनको विश कर दे। एक ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग में एक दूसरे से पर्सनल रिलेशनशिप का उतना ही महत्व है जितना कि आपकी अपनी पर्सनल मेहनत का भी है। तो आज जैसे दिखाई दे रहा है, आज मिस्टर मोहित निगम डीसीआईटी हैं हमारे यहाँ, मिस्टर पीयूष श्रीवास्तव आईटीओ हैं, प्रभात यादव, इन लोगों के बर्थडेज हैं। उसी के नीचे देखेंगे तो एक रिटायरमेंट्स का है। ये एक हमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट थी। एज सीआईटी एडमिन मेरे पास 28-29 तारीख को एडिशनल चार्ज का ऑर्डर पुटअप किया जाता था, क्योंकि तभी सडनली ध्यान आता था कि कुछ लोग रिटायर होने वाले हैं 31 तारीख को या 30 तारीख को। इतने शॉर्ट समय में प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड की किस व्यक्ति को, किस अधिकारी को एडिशनल चार्ज दिया जाए, या अगर कोई ऑलरेडी हमारे पैनल में है प्रमोशन के लिए कि किसका प्रमोशन ऑर्डर रिलीज किया जाए, ये नहीं हो पाता। अब ये लिस्ट इस सॉफ्टवेयर में मंथ के शुरू में ही आ जाती है, तो हमें पास पूरा 1 महीने का समय है इसकी तैयारी करने के लिए कि किस आदमी को हमें एडिशनल चार्ज देना है। अगर आप एप्लीकेशन के टॉप पे देखेंगे तो ये 3 लाइनें आ रही हैं। इन 3 लाइनों को जब क्लिक करते हैं तो इसमें और मेन्यू आइटम्स दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है अपडेट पर्सनल डिटेल्स। अपडेट पर्सनल डिटेल्स में आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। इसको हेडक्वार्टर्स एंटर नहीं कर रहा है। मैं इसमें केवल एक अपनी फोटोग्राफ चेंज करके दिखाता हूँ। ये टेस्ट एम्प्लॉय का डेटा है। मैं इसमें एक अपनी फोटोग्राफ मोबाइल से खींच के आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने इसमें अपनी मेरी एक फोटो खींची भी थी मेरे फोन में। ये मेरे बाकी परिवार लोगों के फोटोग्राफ्स हैं। तो मैंने एक फोटोग्राफ सेलेक्ट कर ली है इसमें। नेट पे थोड़ा सा ये धीमे चल रहा है, एक सेकेंड। अपडेट डिटेल्स, तो ये डिटेल अपडेट हो गया है। और अगर अब आप देखेंगे तो आपका फोटोग्राफ यहाँ पे आ जाएगा। ये फोटोग्राफ आपके सभी कोलीग्स को जो इसको एक्सेस कर रहे हैं दिखाई दे सकता है। थोड़ा सा डिले है, अभी आपके स्क्रीन पे आने वाला होगा ये, आई होप। एक मिनट, शायद मेरा मोबाइल का कनेक्शन खत्म हो गया। मैं 1 मिनट दोबारा कनेक्ट करता हूँ इसको। तो मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया अनफॉर्चुनेटली, तो इसलिए आपको स्क्रीन के बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन या मैं दोबारा दिखाता हूँ।
नो अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अपना मोबाइल स्क्रीन अभी नहीं दिखा पा रहा हूँ. सो एनीवे, सो आई वाज क्लोज टू फिनिशिंग द मोबाइल पार्ट, और अब आई विल स्विच टू शेयरिंग माय कंप्यूटर स्क्रीन, सो दैट इसका जो वेब वर्जन है उससे बाकी चीजें हम लोग देख सकते हैं. सो अगेन बिफोर स्विचिंग टू द वेबसाइट, किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकता है प्लीज, while I switch to the screen. No questions? Okay. So can you see my screen? Arvind Mishra sir, एक बार yes बोल दीजिए अगर देख रही है तो. Yes, sir, we can see the screen, sir. Okay. Okay. Microphone off, please. So इसका एड्रेस है upeast.itdonline.in. So मैं शुरू से चलता हूँ, फ्रेश स्क्रीन से शुरू करते हैं. upeast.itdonline.in. इसमें पहले मैं एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरीके से लॉग इन करूंगा. तो वही चीजें जो मैंने आपको मोबाइल पे दिखाई थी वो वेबसाइट पे भी हैं. ये जो ग्रीन वाला बॉक्स है इसमें सारे कम्युनिकेशंस हैं, जैसे लेटेस्ट शायद कल का है इनका एडिशनल चार्ज अरेंजमेंट इन द कैडर ऑफ ACIT एंड DCIT. स्क्रीन प्रोजेक्शन में कितना डिले है मुझे नहीं पता है, लेकिन क्या आपको लॉगिन के बाद की स्क्रीन दिखने लगी है सर? Yes, sir, दिख रही है सर. ओके, थैंक यू. तो इसी में एक कोई आइटम मैं खोल के दिखाता हूँ. तो जो 22 तारीख को जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था एडिशनल चार्ज अरेंजमेंट्स, तो मेरा रिक्वेस्ट एम्प्लॉयज से है कि इसको पीरियोडिकली देखते रहें. और अगर आपने मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो उसमें तो जैसे बाकी मोबाइल एप्लीकेशंस में अलर्ट्स आते हैं, कोई भी नई चीज जब आती है तो इसमें आ जाएगी, आपको अलर्ट्स आ जाएगा. टैक्स न्यूज है, बर्थडेज है, रिटायरमेंट्स है. नाउ मेरा प्रोफाइल क्या है? माय प्रोफाइल सेक्शन में ये मेरे बारे में है. अबाउट माय फैमिली, मेरा बेसिक एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स. ये जो बेसिक डिटेल्स हैं ये सारे दूसरे लोगों को नहीं दिखते हैं, ये केवल आपको दिखाई देता है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है और कुछ डिटेल्स हैं. रिक्रूटमेंट डिटेल की कब सिलेक्शन हुआ, कौन से एग्जाम के थ्रू हुआ, UPSC लिखा हुआ है, कौन सी डेट ऑफ ज्वाइनिंग थी जब मैंने विभाग को ज्वाइन किया, और करंट प्रमोशन डिटेल्स, यानी मेरा इस समय पद CIT है तो CIT में कब बने, और पोस्टिंग हिस्ट्री. ये यूपी ईस्ट से ही शुरू हुआ है, तो यूपी ईस्ट में मैं जो लेटेस्ट पोस्ट थी 6, ये जब से मैं पोस्टेड रहा 27/11/2020 से लेकर 27/11/2020 तक जब मैं CIT एडमिन रहा, लेटेस्ट पोजीशन यहाँ पे आ रही है. मैं केवल अपने प्रोफाइल के अलावा पब्लिक प्रोफाइल पे अगर जाऊं तो पब्लिक प्रोफाइल में मुझे यूपी ईस्ट के जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनका पब्लिक प्रोफाइल देख सकते हैं. तो किसी एक एम्प्लॉय का देखते हैं. मैंने इनसे परमिशन तो नहीं ली है, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन पर्पज से आपको दिखा सकते हैं. अर्चना किशोर चौधरी DTRTI में ही है, तो इनका अगर हम देखते हैं तो इनका पब्लिक प्रोफाइल यहाँ पे है. नाउ इस पब्लिक प्रोफाइल का फायदा क्या है? अगर आपको किसी स्पेसिफिक एम्प्लॉय से कांटेक्ट करना है तो आपको उसका फोन नंबर चाहिएगा, उसका ईमेल एड्रेस चाहिएगा, बोथ नेम बेस्ड. यहाँ पे नेम बेस्ड ईमेल आता है और यहाँ पे ऑफिस बेस्ड ईमेल आता है, और इनका पोस्टिंग प्रोफाइल आता है. बाकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है
वो दिखाई नहीं देती है। सर क्या स्क्रीन्स और वॉइस इन सिंक है या स्क्रीन्स डिलेड आ रही हैं सर? इन सिंक है सर, इन सिंक है ठीक सर। है, ठीक, ओके ओके। सो ये था पब्लिक प्रोफाइल। उसके बाद एम्प्लॉयज को सुविधा है अपनी अपार देखने की। तो मेरा अपार नहीं होगा क्योंकि मेरा अपार स्पैरो में जाता है। मैं आपको एक टेस्ट एम्प्लॉय की तरीके से लॉगिन करके अब दिखाता हूं, जिसमें कि एक टेस्ट डेटा के बेसिस पे माध्यम से ये टेस्ट एम्प्लॉय है। यहाँ पे टेस्ट एम्प्लॉय लिखा हुआ है और ये फोटोग्राफ जो मैंने मोबाइल से अपलोड की थी, अब मेरी फोटोग्राफ यहाँ पे वेबसाइट पे भी आ रही है। यहाँ पे टेस्ट एम्प्लॉय जहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पे, उसके बगल में। और इनकी अगर अपार देखें टेस्ट एम्प्लॉय की, तो जो भी अपार आपके अधिकारी लिखते हैं वो इवेंचुअली कस्टोडियन के पास जाती हैं सीसीए ऑफिस में। वहाँ पे एक एओ अपार की का डेजिग्नेटेड पद है जिनका स्टाफ इसको चढ़ाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लास्ट टाइम जब इंस्पेक्टर टू आईटी और बाकी पदों के जब प्रमोशन हो रहे थे, तो ये देखने में आया कि बहुत सारे अधिकारियों के, बहुत सारे एम्प्लॉयज के अपार मिसिंग थे। इसमें कई कई साल के अपार मिसिंग थे। एम्प्लॉयज का कहना था कि वो लिखे गए हैं, लेकिन जो डीपीसी होती है उसका रोल एक यूपीएससी के समान है। वो एक डिसीजन लेती है सिलेक्शन पोस्ट के लिए कि कोई अधिकारी नेक्स्ट पद के लिए सक्षम है कि नहीं। और वो जैसे कि आप सब जानते हैं, डीपीसीज के आधार पे डीपीसी अपने अपार के आधार पे लेती है। तो अगर अपार उपलब्ध नहीं है तो डीपीसी प्रमोशन करने में सक्षम नहीं है एज पर रूल्स। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सबको इस समय दिखाई दे रहा है कि उसकी कितनी अपार कस्टोडियन के पास पहुंच गई हैं। हो सकता है आपने लिखी हो, आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर ने लिखी हो, लेकिन वो कस्टोडियन के पास किसी वजह से नहीं पहुंची हो। तो मेरी समझ से इसमें फायदा है कि आप इसको रिकॉर्ड को कंप्लीट करा लें और आपको दिख रहा है यहाँ पे चढ़ जानी चाहिए, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब डीपीसीज हो तो उसमें आप किसी भी आपका जो आपको प्रमोशन मिलना चाहिए उससे वंचित ना रह जाएं। तो ये अपार हो गया, पब्लिक प्रोफाइल हो गया। डेटा को कंसोलिडेट करने के दो और फायदे हैं। एक, हमें ऑनलाइन डायरेक्टरी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बन के मिल जाती है। तो ऑनलाइन डायरेक्टरी हमने दो तरीके से बनाई है, एक पीसीआईटी वाइज और एक स्टेशन वाइज। जब हम पीसीआईटी वाइज करते हैं तो हम पीसीआईटीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। इस समय जैसे मैं एक सीआईटी एडमिन एंड टीपीएस सेलेक्ट करता हूं, तो यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी छोटी है, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। आई होप क्लियर हो गया होगा थोड़ा सा बेटर। तो इसमें सीआईटी एडमिन नीरज कुमार साहब का नाम आ रहा है। मैंने कोई डेटा नहीं डाला है, आई डोंट थिंक हेडक्वार्टर ने मुझे कोई अलग से डाला है। जब इनकी ज्वाइनिंग इसमें डाली गई है तो ऑटोमेटिकली ये डायरेक्टरी में भी इनका नाम आ गया है, जिसमें इनका पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल ईमेल एड्रेस और पोस्ट पेस्ट ईमेल एड्रेस सारा आ गया है। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे कि जो एनईएसीज बने, आरईएसीज बने हैं, जैसे जैसे वहां पे पोस्टिंग होती जा रही है, अब मैं पीसीआईटी आरईएसी फैजाबाद लेता हूँ, उसको अगर हम खोल के देखेंगे तो वहां पे कौन कौन पोस्टेड है उनका भी नाम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। इसका फायदा केवल ये नहीं है कि आपको कॉल करने के लिए आदमी चाहिए। हम लोग को वर्क से रिलेटेड कई बार जानकारी चाहिए होती है। हम जानना चाहते हैं कि आरईएसी में क्या हो रहा है, किसी से बात करनी है, तो सबसे पहला काम ये रह जाता है कि उसका फोन नंबर ढूंढो, उसका ईमेल एड्रेस ढूंढो। तो यहाँ पे खुद ब खुद नेम बेस्ड ईमेल एड्रेस वगैरह अपने आप तैयार होते जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि वो अधिकारी कौन से स्टेशन पे पोस्टेड है, तो एक स्टेशन वाइज डायरेक्टरी भी तैयार हो सकती है इससे ऑटोमेटिकली। जैसे कोई भी एक स्टेशन ले लेते हैं, जैसे बस्ती। तो बस्ती में इस वक्त जितने एम्प्लॉयज हैं उनका डेटा हमारे पास यहाँ पे खुद ब खुद तैयार हो जा रहा है।
इसके अलावा एम्प्लॉयज को अपना ट्रांसफर ऑप्शन देने की सुविधा है। यहाँ पे एक लॉक है, ये खुला हुआ है, यानी कि ट्रांसफर ऑप्शन देने की सुविधा अभी खुली हुई है। तो इस टेस्ट एम्प्लॉय ने ऑलरेडी इस साल के लिए भर रखा है एजीटी ईयर 2020 के लिए, इसलिए कोई ऑप्शन भरने का नहीं आ रहा है, लेकिन अपना दिया हुआ ऑप्शन वो कभी भी एडिट कर सकते हैं। तो एक टेस्ट डेटा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेट्स से इलाहाबाद देता हूँ। सेकेंड ऑप्शन अगर मैं दोबारा इलाहाबाद दूंगा तो ये मना कर देगा कि आप एक ऑप्शन को एक ही बार ले सकते हैं। तो उस हिसाब से काफी इसमें इंटेलिजेंस की बिल्ड इन की गई है। नेक्स्ट ऑप्शन अल्मोड़ा दिया। थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट स्टेशन करके छोड़ देते हैं इसको भी। तो ये कहता है कि ये आपको कम से कम 3 ऑप्शन देने होंगे अमेठी। लेट्स से आप अपने रीजंस यहाँ पे दे सकते हैं फॉर गिविंग। अगर स्पेसिफिक रीजन है, कई बार एम्प्लॉयज को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है या कोई और रीजन रहता है। चिल्ड्रंस एजुकेशन ग्राउंड इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ वेरी रेलेवेंट रीजन। माइक्रोफोन काइंडली स्विच ऑफ कर लें। और अगर कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ और चीज है, वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे अटैच किया जा सकता है। अपडेट। तो ये डेटा ऑटोमेटिकली हेडक्वार्टर्स को मिल जाता है, उनको दोबारा ये कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है। तो एक तो डेटा एंट्री का एफर्ट बचता है, दूसरे एरर कम होते हैं। तो जो भी रिमार्क्स वगैरह हैं ये लोकल प्लेसमेंट कमेटी के सामने रखे जाते हैं एज इट इज। बहुत सारे यूजफुल फॉर्म्स यहाँ पे डाले गए हैं। 70 से ज्यादा फॉर्म्स हैं। आपको कोई भी चीज, लीव ट्रैवल कंसेशन, लोकल ट्रैवल बिल, जो ऐसे ऐसे फॉर्म्स हैं जो हम लोग को ढूंढने से नहीं मिलते हैं। एक फैमिली डिक्लेरेशन होता है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग सर्विस, उसका फॉर्म है। तरह तरह के फॉर्म्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ये सब एचआर से रिलेटेड सारे फॉर्म्स लिए गए हैं। टैक्सेशन से रिलेटेड इसमें एक भी फॉर्म नहीं है। और ग्रेडेशन लिस्ट है यहाँ पे। ग्रेडेशन लिस्ट इज इसेंशियली सीनियरिटी लिस्ट। हर साल एज पर रूल्स डीपीसी करने से पहले पब्लिश की जानी चाहिए एज ऑन 1 जनवरी ऑफ दैट ईयर। जब इस पे ऑब्जेक्शन का निवारण हो जाता है तभी प्रमोशन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन सक्षम है। तो इस साल ये पब्लिश करने के बाद इस पे ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। 250-300 से ऊपर ऑब्जेक्शंस आए थे, जिनका जो भी जिस भी प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन ने निवारण किया उसके बाद ही प्रमोशन हम लोग होल्ड कर पाए थे। तो ये अगेन एक बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन है, बहुत रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है एम्प्लॉयज के लिए। तो ये कुछ सुविधाएं एम्प्लॉयज के लिए हैं जो वो ढूंढ सकते हैं। जब तक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तो मैं आपको एक एम्प्लॉयज से को किसे रिलेटेड वो वृक्ष एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो गूगल पे ये अभी उपलब्ध है, गूगल प्ले स्टोर पे। तो केवल गूगल करना है। Excuse me, please. Just give me a second. There is a phone call. Just give me a second. Yes, please. Yes. किसी का माइक्रोफोन खुला हुआ है, प्लीज वो बंद कर दें। सर आप अपना माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। कर दिया है, ठीक है। ओके, सो वृक्ष सीएमएस सर्च करने से पहला रिजल्ट जो आता है, ये फिनएक्सिस कंसल्टेंट जो हमारा वेंडर है इस काम के लिए वो है। तो ये वाली आपको इंस्टॉल करनी है अपने फोन में। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों का इसमें ग्रीवेंस भी है कि अनेबल टू लॉग इन
रवि शेखर चौधरी कुछ कमेंट्स भी आए हुए हैं। बट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि इंस्टॉल्स अगर देखते हैं तो अभी शायद कुल 200 से कम एम्प्लॉयज ने इसको इंस्टॉल किया है। मेरी समझ से इसको इंस्टॉल करने में किसी को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये कुछ इंफॉर्मेशन ही आपको दे रहा है। सो मैं सोचता हूँ कि अगर ये 100 लोग जो आज के इस कॉन्फ्रेंस में है, ये लोग और इसको इंस्टॉल करेंगे, एंड देन बाय वर्ड ऑफ माउथ हमारे सारे 1500 एम्प्लॉयज के पास ये एप्लीकेशन उनके फोन्स पे होना चाहिए। इसको इसको आईफोन के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन मेरे पास भी आईफोन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा स्टाफ के पास आईफोन जैसा महंगा इंस्ट्रूमेंट होगा, बट एंड्रॉयड के किसी भी वर्जन पे ये चल जाता है। तो अब इसी को मैं एक बार जरा एडमिनिस्ट्रेशन के लॉगिन से और दिखाता हूँ। बाकी सारे विंडोज में बंद कर रहा हूँ। सो एडमिनिस्ट्रेशन को इससे क्या फायदा है, कुछ लोग आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम करेंगे, तो CIT एडमिन के रोल से अगर हम इसको देखते हैं, तो स्क्रीन्स वैसे ही हैं, कुछ चेंज नहीं है, एक्सेप्ट यहाँ पे एक ट्रांसफर ऑर्डर और प्रमोशन ऑर्डर एंटर करने का दिया हुआ है। ये ट्रांसफर ऑर्डर बनाने की इसमें बहुत ही इजी सुविधा दी हुई है कि अगर हम किसी को ग्रेड लेवल सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से कोई ITO लेते हैं लेवल 8, तो जितने भी ITO लेवल 8 पे हैं हमारे यहाँ आ जाते हैं। अभी मैं कोई भी एक नाम लेता हूं, तो उनका प्रेजेंट पोस्टिंग कहाँ पे है वो दिखाई देता है। उसको हम अगर इस एम्प्लॉय को अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो एग्जिस्टिंग पोस्टिंग दिखाई दे रही है। मान लीजिए इनको हम लखनऊ पोस्ट करते हैं, तो लखनऊ के जितने ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। मान लीजिए सेंट्रल वार्ड, वी आर पोस्टिंग एज IAP लखनऊ। तो सब्सटैंटिव पोस्ट में कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें कर रहे हैं, ये दिया जा सकता है, और ऐड करना है। और भी पोस्ट कई बार होता है एक ही अधिकारी को हम एक से ज्यादा पोस्टिंग कर रहे हैं, तो लखनऊ में ही कोई और IAP2 का भी चार्ज अगर हमें देना है, लेट्स से शॉर्टेज है अधिकारियों की, तो ये अगर मैं दोबारा सब्सटैंटिव चूज करता हूं तो सॉफ्टवेयर मना कर देता है कि एक अधिकारी को एक से ज्यादा सब्सटैंटिव पोस्टिंग नहीं दी जा सकती है। अगर एक से ज्यादा देनी है तो दूसरी पोस्ट एडिशनल चार्ज के तौर ही हो सकती है, और अगर कोई रीजन लिखना है किसी वजह से तो वो भी लिखा जा सकता है। ये हम सेव कर देते हैं। तो इस तरीके से एक ये ड्राफ्ट ट्रांसफर ऑर्डर बनता चला जाता है। इसमें 20, 30, 40, 50 जितने भी अधिकारियों का है उनको ले सकते हैं। इसका प्रिंट आउट हम लोग लोकल प्लेसमेंट कमेटी के सामने रखते हैं। जो चेंजेस आते हैं उनको हम लोग एडिट करके उसको आदमी का चेंज कर देते हैं, और फाइनल सबमिट बटन दबा देते हैं, जिसमें फाइनल डेट ऑफ ऑर्डर डालते हैं। जैसे ही ये सबमिट करते हैं डेटाबेस में सब जगह ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अभी ये लाइव डेटाबेस है, इसलिए मैं इस ड्राफ्ट ऑर्डर को सेव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डेटाबेस खराब हो जाएगा। ये मैं अभी साथ के साथ डिलीट कर देता हूँ, लाइक दैट। ठीक उसी प्रकार से एम्प्लॉयज का जितना भी डेटा है वो इनको चेंज करने की सुविधा दी गई है। मैं टेस्ट एम्प्लॉय का ही करके दिखाता हूँ। तो इस एम्प्लॉय के बारे में जितना डेटा है वो यहाँ पे उपलब्ध है। उसमें एडिट बटन की दी सुविधा दी गई है। कोई भी पोर्शन एडिट करके अगर कुछ एरर है उसको ठीक किया जा सकता है। और एक प्रश्न आता है कि हमने डेटा तो भर दिया, अब उसकी रिलायबिलिटी क्या है, क्योंकि डेटा एक बार भरने के बाद उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि DDO से वेरीफाई कराएं, और वेरीफाई करने के बाद अगर वो इनएडवर्टेंटली या जानबूझ के कोई चेंज कर देता है तो उसकी सैंक्टिटी खत्म हो जाती है। तो
जब डेटा चेक हो जाए डीडीओ से तो यहाँ पे एक प्रोफाइल को लॉक करने की सुविधा दी गई है। अब मैं इस बटन को दबाता हूँ तो ये प्रोफाइल लॉक हो जाता है। अब ये यहाँ पे कोई एडिट बटन गायब हो गया है। तो हम लोगों ने इस तरीके का प्रोसीजर बना रखा है कि डेटा एंट्री नेचुरली स्टाफ करता है जो हमारे आईटीओ हेडक्वार्टर के पास है या डीसी हेडक्वार्टर के पास है। वो जब इसको चेक करके लॉक कर दें तो उसके बाद अनलॉक करने की सुविधा केवल अधिकारी के पास है। तो इस तरीके से डिलिबरेट या इनएडवर्टेंट डेटा चेंजेस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है बड़ा सिंपल तरीके से। तो अगर आप देखेंगे तो आपका डेटा सुरक्षित है, उसको इनएडवर्टेंट चेंज होना नहीं चाहिए। तो माय सजेशन इज दैट एवरी एम्प्लॉय शुड विजिट हिज प्रोफाइल एंड सी कि ये सारी चीजें ठीक से दर्ज की गई हैं कि नहीं। हम लोगों ने अपनी तरफ से, ये मैं सीआईटी एडमिन के रोल पे हूँ इसलिए मैं खोल सकता हूँ, अपनी तरफ से ये कोशिश की गई है कि डेटा एंट्री एरर मिनिमाइज करें। वो मिनिमाइज करने के लिए सारा डेटा एंट्री मेन्यू ड्रिवन है, यानी ड्रॉप डाउन से है। एक सर्विसमैन है, यस नो, मतलब उसमें टाइप नहीं करना है। फिजिकली हैंडीकैप्ड है, यस नो। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी क्या है, तो जितने तरीके की कैटेगरीज होती हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड वगैरह वगैरह यहाँ पे दिए हुए हैं। पूरे टाउन्स की लिस्ट है पूरे इंडिया के, जिससे कि कहीं पे भी कोई एंट्री करने में एरर ना हो। क्योंकि अगर लखनऊ को ही 50 तरीके से लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं तो वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए केवल ट्रांसफर ऑर्डर और प्रमोशन ऑर्डर अगर एंटर कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन तो आपका डेटाबेस अपडेटेड रहेगा ब्रॉडली। अच्छा, और इसी तरीके से जो अपार कस्टोडियन है उसको नया अपार एंटर करने की सुविधा दी गई है। तो एम्प्लॉय का नाम वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सर्च एम्प्लॉय जो यहाँ पे हैं। मैं टेस्ट एम्प्लॉय का ही फिर से दिखाता हूँ। जैसे ही ये टेस्ट एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं तो आधे से ज़्यादा डेटा उनका पहले से भर जाता है, जिससे कि जो हमारा कस्टोडियन है उसका भी डेटा एंट्री एफर्ट मिनिमाइज हो जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे है। और एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ायदा क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ायदा क्या है कि रिपोर्ट्स, जो मैंने बात शुरू की थी कि अगर हमें चाहिए कि कौन आदमी कहाँ पोस्टेड है तो वो ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए। तो एक स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स जो बनती हैं जैसे स्टेशन वाइज कि कौन से स्टेशन पे कितने लोग पोस्टेड हैं। तो लेट्स से हम स्टेशन वाइज देखना चाहते हैं कि आईटीआईज की क्या पोजीशन है। मैं सबमिट किया है बटन, इसको रिपोर्ट को जनरेट होने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि डेटाबेस बड़ा है। तो अब देखिए, ये इलाहाबाद में इस टाइम 48 इंस्पेक्टर्स हैं, अल्मोड़ा में 1 है, अमेठी में 1 है। ये पूरा डेटा लखनऊ में 141 हैं। एट अ टच ऑफ अ बटन 398 टोटल नंबर है हमारे यहाँ इस टाइम पे इंस्पेक्टर्स का। सेम वे वी कैन ऐड कि लेट्स से आईटीओ, और आईटीओ ये पोजीशन है सबमिट। सो रिपोर्ट जनरेट होने में थोड़ा समय लगता है, 8-10 सेकेंड। या सो इलाहाबाद में 23 आईटीओज हैं। किसी ने माइक्रोफोन ऑन कर लिया प्लीज? आपको बताना, ये नहीं करना। हमारी ज्वाइनिंग हो गई वहां पे। बरेली में 16 हैं। इस प्रकार से पूरा एट अ ग्लांस मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन 18 रीजन्स में से किसी के पास भी उपलब्ध नहीं होगी, चाहे वो दिल्ली हो या बॉम्बे हो, एट अ टच ऑफ अ बटन। और ये सारा डेटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है सिंपली बाय एंटरिंग द प्रमोशन ऑर्डर एंड ट्रांसफर ऑर्डर। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। दैट्स इट। इनफैक्ट ट्रांसफर ऑर्डर इसी सिस्टम से जनरेट भी किया जा सकता है। तो ब्रॉडली ये चीजें मुझे आपको दिखानी थी, और शायद 5 मिनट बचे हैं सेशन खत्म होने के, तो ये 5 मिनट हम ले सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स के लिए, किसी को इसमें कुछ पूछना हो तो। So I am completely open to questions and answers now. I am not taking up Daksh. I think sir आप दक्ष के लिए दूसरा कोई सेशन ले रहे हैं, ये स्पेसिफिकली वृक्ष के लिए सेशन था। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। एक आप अगर हाथ रेज करेंगे तो बेटर रहेगा, एट अ टाइम 1 आदमी पूछ सकेगा। सर।
ओके मिस्टर रामकरण गौतम, यस प्लीज। जी सर, ITO अम्बेडकर नगर सर। जी सर मैं अपनी पर्सनल प्रोफाइल देख रहा था, उसमें पेज लेवल गलत लिखा है और पर्सनल प्रोफाइल गलत लिखी गई है सर, उसका करेक्शन कैसे होगा? हाँ, तो इसमें शायद आप मिस कर गए, जब इसको लॉन्च किया था तो एक सर्कुलर निकाला था हमने, इसमें सर सुविधा दी है। मेरे को शायद एक बार दोबारा आपको शेयर करनी पड़ेगी स्क्रीन। मैं दोबारा जी से एक बार कोशिश करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ। सर। सो जब आप अपने पर्सनल प्रोफाइल पे जाते हैं, आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं दूसरे लॉगिन पे हूँ, मैं आपको एग्जैक्ट दिखाता हूँ, क्योंकि वाई टेक अ डाउट। तो जैसे मैं अपने अपने लॉगिन से करता हूँ, VG8। तो जब मैं माय प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो ये पेज आता है। इसमें आप बता रहे हैं कि कुछ गलतियां हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, ये जो प्रिंट रिकॉर्ड का जी रेड बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करिए तो ये पूरी की पूरी शीट प्रिंट हो जाएगी। इसमें आप हाथ जी से जो जो करेक्शंस करने हैं वो करेक्ट करके अपने ईमेल एड्रेस से ITO हेडक्वार्टर जो CC ऑफिस में है उनको ईमेल कर दीजिए। ओके सर। तो एक रिकॉर्ड रहेगा कि आपके सिग्नेचर से आएगा और ऑफिशियल मेल से, अपनी ऑफिशियल नेम बेस्ड ऑफिशियल मेल से भेजेंगे। कोई जीमेल बीमेल नहीं जी चाहिए। incometax.gov नहीं डॉट इन आपकी नेम बेस्ड ईमेल होगी, उससे आप ITO Lucknow.ITO.headquarter ऐसे कुछ ईमेल एड्रेस है इनका सरकारी, उस पे भेजेंगे। है। So that is the way of ensuring that only correct data is entered now. अभी तक जो डेटा आया है वो डेटा हमने आपसे पूछा नहीं है। ये सारा का सारा डेटा या तो HRMS से लिया गया है या जो पुराना किसी ना किसी कंप्यूटर में ट्रांसफर पोस्टिंग के टाइम पे भरा रहता है उससे उठाया गया है। तो हो सकता है कुछ गलतियां हो, इसको करेक्ट करा लीजिए। जी सर, थैंक यू। आई विल फॉलो। थैंक यू। ओके, आई विल फॉलो सर। और कोई क्वेश्चन? मेरा एक एक मिस्टर मोहम्मद आरिफ ने शायद हाथ रेस किया है। मोहम्मद आरिफ, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। जी, गुड मॉर्निंग सर। हाँ बताइए। सर ये अभी जो ITO सर ने पूछा था तो वो हमने अपना अपडेट करके और उसको मेल से भेज भी दिया, लेकिन वो अभी तक हमारे इस पे वरिष्ठ वाले उस पोर्टल पे अपडेट नहीं दिख रहा है। ओके, देन देयर इज अ प्रॉब्लम एट द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कब भेजा था आपने, कितने समय पहले? ये 29 जुलाई 2020 को भेजा था हमने। आपने 29 जुलाई, आपने जब लॉन्च होते टाइम ही भेज दिया है लगता है। तो आप काफी अलर्ट थे। शायद उस टाइम तक हमारे प्रोसेसेस स्टेबलाइज नहीं हुए थे जो हम लोगों ने। इनफैक्ट अगर आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं तो एक यहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फॉर हेडक्वार्टर एम्प्लॉयज। ये सब चीजें इवॉल्विंग होती हैं। ये काफी समय बाद डेवलप हो पाया ट्रायल एंड एरर से कि क्या बेस्ट तरीका है इसको करने का। ऑल्दो मैं अब CIT एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मिस्टर रविशेखर चौधरी से आपके बिहाफ पे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। आफ्टर दिस में एक मैं मेल डाल देता हूँ उनको कि आपका ये डेटा अपडेट कर दिया जाए, और अगर कुछ दिक्कत होगी तो प्लीज कॉल देम अप। आप लोग को आपस में एक दूसरे से बात करने में हिचकना नहीं चाहिए। तो उनको फोन कर दीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कर लीजिए। आई एम श्योर इट विल बी डन। इनफैक्ट इनकी रिक्वायरमेंट है कि सबका डेटाबेस अपडेटेड होना चाहिए, नहीं तो इस सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन? सर नमस्कार, मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी, आपका नाम मैं स्क्रीन पे ले लूं मैं आपको? एक्चुअली सर मेरे इसमें रेज हैंड करने का ऑप्शन शो नहीं होता है। मेरा कोई नाम बात नहीं, अनुराग आप अपना। है, देहरादून हाँ, में। ओके। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये सुविधा सिर्फ अभी यूपी ईस्ट रीजन के एम्प्लॉयज के लिए ही अवेलेबल है? यस, लेकिन देहरादून, हाँ देहरादून UP वेस्ट का पार्ट है। ये जी सर। सुविधा एक्चुअली
होना तो सेंट्रल लेवल पे चाहिए। सो यूपी वेस्ट के जो सीआईटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनको और 3-4 और जो सीआईटी एडमिनिस्ट्रेशन जिनको मैं जानता था उनको मैंने रिक्वेस्ट किया है ये सॉफ्टवेयर आप लोग भी इम्प्लीमेंट करा लें। ये सॉफ्टवेयर लोकल, जैसे जो यूपी के चीफ मिनिस्टर का स्लोगन है, लोकल हैव वन डिस्ट्रिक्ट वन स्कीम वाला, उस तरीके से लोकल सॉफ्टवेयर समटाइम्स बहुत सस्ता बन सकता है। तो दिस सॉफ्टवेयर इज एक्सट्रीमली चीप। इसकी कॉस्ट आपकी परचेज कमेटी लिमिट में कोई भी सीआईटी एडमिनिस्ट्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका एक वर्जन केवल उनको इंस्टॉल करना है। तो अगर आप अपने नए सीआईटी एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेंगे, आई एम श्योर ये 15 दिन के अंदर अंदर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके सर। सर वन मोर सर, मिनिमल कॉस्ट, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना सस्ते में हो सकता है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस द फाइनेंशियल्स इन द पब्लिक फोरम, बट वेरी चीप, वेरी चीप। सर वन मोर क्वेरी सर, जैसे इसमें हम लोग, मैंने ये ऐप अभी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग सेशन मैंने डाउनलोड करके उसमें लॉगिन करने के लिए ट्राई किया था, तो वो यूजर नेम पासवर्ड डालने के लिए बोलता है स्ट्रेट अवे, जबकि मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स में ऐसा होता है कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक पासवर्ड चूज करते हैं, फिर आप लॉगिन करते हैं। तो मैंने इसमें लॉगिन पासवर्ड डाला तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं होती? मैं बताता हूँ, ये डेटा हम लोग का रिस्ट्रिक्टेड डेटा है। हम इसको केवल एम्प्लॉयज को दिखाना चाहते हैं, किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिखाना चाहते हैं। करेक्ट? जी सर। तो हम लोगों ने क्या किया था, किसी भी सॉफ्टवेयर में नए यूजर्स को ऑनबोर्ड करना, मतलब उनको इसमें सम्मिलित करना अपने आप में एक बड़ा काम हो जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि आपको जो आइडेंटिफाई करता है वो आपका फोन नंबर और ईमेल एड्रेस आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप यही आदमी हो। जैसे आपका आधार नंबर पब्लिक के लिए करता है, डिपार्टमेंट में यूनिक आइडेंटिटी आपके ईमेल से बन जाती है जो विभाग ने आपको दिया है। तो हमने इसमें यूजर्स पहले से बना रखे हैं। आपको सिंपली इतना करना है, मैं आपको फिर से शेयर करके दिखाता हूँ। ये मैं साइन आउट कर रहा हूँ। मैं मोबाइल इंटरनेट यूज कर रहा हूँ। आई हैव जॉइंड अ न्यू ऑफिस। यहाँ पे अभी इंटरनेट की वैसी सुविधा नहीं है। या तो अगर आप देखेंगे तो ये लॉगिन स्क्रीन पे ही एक फॉरगॉट पासवर्ड की सुविधा है। मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको केवल अपना एम्प्लॉय कोड डालना है। मैं टेस्ट अपना ही डाल के देखता हूँ 106-942। ये मेरा एम्प्लॉय कोड है N9DC9 फॉरगॉट पासवर्ड। तो ये आपके ईमेल और मोबाइल पे पासवर्ड जाना चाहिए। ये भी मैंने टेस्ट नहीं किया कुछ समय से, लेकिन मैं देखता हूँ मेरे मोबाइल पे आ रहा है क्या। अभी नहीं आया है, लेकिन आपके मोबाइल पे ये आ जाना चाहिए। मेरे को देखना पड़ेगा मेरा मोबाइल नंबर अंदर पड़ा हुआ है कि नहीं। अगर ये नहीं होता है तो अगेन सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट इन यूपी ईस्ट इज आईटीओ हेडक्वार्टर। किसी वजह से नहीं आ रहा है तो आप आईटीओ हेडक्वार्टर से बात करके अपना पासवर्ड ले सकते हैं। बट अगर मेरे को लगता है 99% चांसेस हैं कि जब आप फॉरगॉट पासवर्ड करेंगे तो आपके मोबाइल पे पासवर्ड आ जाएगा। आई होप दिस शुड वर्क ऑटोमेटिकली। आपको रजिस्टर करने की भी जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बताइए, एनी अदर क्वेश्चन? आपका भी टीचर होता है? किसी की आवाज तो आई, लेकिन पता नहीं क्वेश्चन है या just 1 second। हाँ, और किसी का मेरे को रेज्ड हैंड भी, हाँ एक और रेज्ड हैंड दिख रहा है, मिस्टर नीरज सिंह। मिस्टर नीरज सिंह, सर गुड आफ्टरनून। जी बताइए सर वो एक मेरा सर क्वेरी है सर, क्वेश्चन है सर। जो
ये जो वृक्ष वाला सॉफ्टवेयर है सर, इसमें एक ऑप्शन है पब्लिक प्रोफाइल का। जी तो उसमें सर मैं जैसे अपना चेक कर रहा था कि मेरी पोस्टिंग जो है कहाँ से कहाँ तक उसमें अपडेट है कि नहीं है। जी। जैसे और उसमें दिक्कत ये है कि उसको काफी स्क्रॉल कर रहे हैं, काफी टाइम लगा मुझे ढूंढने में नाम अपना, तब जाके आया। या तो वो मतलब या तो पोस्ट वाइज वो ये अरेंज हो जाए, या कोई या अल्फाबेटिक वाइज अरेंज हो जाए। ये चीज थोड़ा सजेशन ढूंढने में आपका वैलिड है, उसको अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग होनी चाहिए, सही कह रहे हैं। आई विल गिव इट अ सजेशन, सही कह रहे हैं। अल्फाबेटिकली हो जाए या जो है मतलब जो भी पद हो, पोस्टिंग हो, या उसके हिसाब से होनी चाहिए सर। जी तो उसको ठीक, सही ढूंढने में सजेशन। काफी सर टाइम लगता है, इसलिए स्क्रॉल करना हाँ पड़ा था सही, उसको। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। और उसमें ये इसमें भी नहीं सिस्टम है कि एम्प्लॉय कोड डाल के उसको सर्च कर लें, एम्प्लॉय कोड डालने भी नहीं देता है सर। सही कह रहे हैं। सो पब्लिक प्रोफाइल में वो जो लिंक लिस्ट आती है वो बाद में ऐड की थी, मुझे याद है। उसको जी अभी सॉर्ट नहीं किया गया। ये वैलिड सजेशन है, इसको मैं आईटीओ हेडक्वार्टर्स को कम्युनिकेट कर देता हूँ। थैंक यू। सर थैंक्स। So, yes, Neeraj Singh, any other? Yeah, Mr. Vishnu Avatar. मिस्टर विष्णु अवतार का है, और एक मकर ध्वज मौर्य। मकर ध्वज मौर्य हैं, इनका रेज्ड हैंड मेरे को दिख रहा है। क्वेश्चन आपको पूछना है तो अपना माइक ऑन करके पूछ लीजिए। मिस्टर विष्णु अवतार एंड मिस्टर मकर ध्वज मौर्य। जी सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। बताइए गुड मॉर्निंग सर। बताइए। यस प्लीज बोलिए। हेलो सर। जी सर मैं इलाहाबाद से मकर ध्वज मौर्य बोल रहा हूँ। जी। जी सर, किसी एम्प्लॉय का तरंग नंबर नहीं है सर, तो उसका नंबर पासवर्ड रिसेट नहीं हो पा रहा, तो किस तरह हो पाएगा सर, जो है कि नंबर कैसे चेंज हो सकता है उसका? अगेन जो भी चेंजेस हैं, शुरू में हमने इसको ओपन किया था कि आप लोग खुद से अपना डिटेल भर सकते थे, फोन नंबर वगैरह सब कुछ डाल सकते थे। लेकिन जैसे जैसे डेटा बढ़ता गया तो वो चीज आती है कि इस डेटा को अब सिक्योर कैसे किया जाए, कोई गलती से इसमें चेंज ना कर दे, तो वो सुविधा इसमें से विड्रॉ कर ली थी। तो अभी अगर आपको कोई चेंज कराना है, एक सिंपल आप एक ईमेल डाल दीजिए आईटीओ हेडक्वार्टर के डेजिग्नेशन बेस्ड मेल पे। वो लोग वहां पे अब स्टाफ की ड्यूटी चार्ट में दिया हुआ है कि किसको क्या काम करना है। तो अगर आपका मेल जाएगा आईटीओ हेडक्वार्टर को तो आई एम श्योर वो लोग इसको चेंज कर देंगे। ठीक है। हाँ, मिस्टर विष्णु अवतार भी शायद बोलना चाह रहे थे। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग, बताइए। माई सेल्फ सुनील कुमार सर फ्रॉम गोरखपुर। जी सर मेरा जो पहले जो मैं अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करता था तो वो हो जाता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से मैं उसको कर रहा हूँ लॉगिन, तो वो पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है। तो ये और मैं फिर तो चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हो भी तो समझ मैं रहा क्या हूँ, करूँ सर? क्योंकि नहीं वैसे कोई समस्या नहीं है इसमें। आइडियली हो जाना चाहिए। जी कुछ स्पेसिफिक ये इवॉल्विंग सॉफ्टवेयर, इसको जब तक पोस्ट मैंने छोड़ी है नवंबर में, तब तक कुछ ना कुछ हम लोग इसमें चेंजेस कराते ही रहे। तो काफी सारा डेवलपमेंट वर्क हुआ है, काफी बग्स वगैरह रिमूव हुए हैं। तो अभी मेरी जी समझ से स्टेबल चल रहा है। एक बार आप दोबारा ट्राई कर लीजिएगा, अगर नहीं हो रहा है तो एक बार आईटीओ हेडक्वार्टर का अगेन सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपके लिए आईटीओ हेडक्वार्टर्स। इस प्रोजेक्ट के जी जो इंचार्ज हैं इस समय पे, कोई भी हो सकता है, लेकिन इसको डेजिग्नेट किया है हमने आईटीओ हेडक्वार्टर्स के लिए। यस तो उनको आप मेल डाल दीजिए, तो आई थिंक हो जी जाना चाहिए। मैं अपनी तरफ से ये लॉगिन और पासवर्ड रिलेटेड इश्यूज उनको रेज कर दूंगा इमीडिएटली आफ्टर दिस मीटिंग। थैंक यू। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। हेलो नमस्कार सर, विष्णु अवतार बोल रहा है सर। जी
सर मेरा क्वेश्चन अपार से है सर। अपार अगर सर हमारे एंड पे लिखने के लिए मिल जाए ऑनलाइन फीडिंग करने के लिए, क्योंकि लखनऊ तक पहुंचते पहुंचते मिस हो जाता है सर। देखिए, जो अपने लेवल पे भरने का है वो आप सही कह रहे हैं, वो बेस्ट मेथड है। और जो भारत सरकार का जो स्पैरो सॉफ्टवेयर है, ये एनआईसी ने बनाया है और इसको डीओपीटी चलाता है, जी सर। ये शायद सबसे बेहतर विकल्प होगा। और एचआरडी इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो क्योंकि वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना हुआ है, हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर में डुप्लीकेशन करने की आवश्यकता नहीं है। दो जगह डेटा आप नहीं डाल सकते, दो जगह मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। तो आइडियली जब भी कभी वो इम्प्लीमेंट होगा, उसमें ऑलरेडी ये सुविधा इनबिल्ट है। आप अपनी सीआर उसी पे लिखते हैं, उसी पे रिपोर्ट होती है, उसी पे रिव्यू होती है और उसी पे एक्सेप्ट होती है। बहुत अच्छा सिस्टम है, इस साल से अधिकारियों का भरा गया है ITO एंड अबव। आई जी होप जी कि ये फ्यूचर में स्टाफ के लिए भी हो जाएगा। जी, थैंक यू। और तब तक अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल जब लिख के पहुंचती है ये, तो उसका डेटा केवल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से उसको सीआर उसको प्रमोशंस के लिए 56J के लिए हर साल हर महीने रिपोर्ट देनी होती है, उसमें इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो वहां पे हमें केवल फाइनल डेटा चाहिए कि फाइनल रिपोर्टिंग क्या की है किसी ने। तो वो इसलिए हेडक्वार्टर में हो रहा है क्योंकि जितनी भी आपकी अपार लिखी जाती हैं, इवेंचुअली जब वो रिव्यू हो जाती हैं तो वो सीधे कस्टोडियन को भेजी जाती हैं। तो सारे जगह इतने सारे लॉगिन देंगे, उनका लॉगिन मैनेजमेंट ही एक अपने आप में कार्य हो जाएगा। तो अभी के लिए शायद मुझे लगता है ये बेहतर है। किसी वजह से अगर स्पैरो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब सोचा जा सकता है कि इसमें एक अपार का वर्कफ्लो बिल्ड किया जाए। बट वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि जो बेनिफिट है उसका उतना बेनिफिट हम लोग निकाल पाएंगे इसको स्मॉल लेवल पे इम्प्लीमेंट करके। बट योर सजेशन इज करेक्ट, इसको स्पैरो को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तब शायद हमें इस अपार मॉड्यूल की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। आई होप आई हैव बीन एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू। थैंक यू। Arvind Mishra sir, can we close it now? Sir, I was seeing one Varun Gupta, वो भी शायद कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे। पूछ लीजिए, पूछिए। वरुण जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। आप बताइए। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे मेरा APR कुछ 2-3 साल का नहीं दिख रहा है सर उस पे, और वो तो सर कैसे होगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये अब हम एक्चुअली सॉफ्टवेयर से बाहर निकल के एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चन पे आ गए हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो वही कर रहा है जो इसको करने को कहा जा रहा है। अगर कस्टोडियन के पास पहुंचे हैं तो उनको इसको एंटर करना चाहिए था। मेरा सजेशन अदर देन द सॉफ्टवेयर इशू एज एन एडमिनिस्ट्रेशन सजेशन है कि आप एक बार कौन है आजकल वो कस्टोडियन, महफूज है वहाँ पे, EO कस्टोडियन, EO अपार, उनसे या मिस्टर नील रंजन चक्रवर्ती से एक बार पूछ लें कि उनके पास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है आपका CR। अगर पहुंच गया है तब कोई कष्ट नहीं है, उसको चढ़ाया जा सकता है। अगर नहीं पहुंचा है तो उसका मेरे पास बहुत स्पष्ट आंसर नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सिस्टम में लंबित है। इसका मतलब आपके रिपोर्टिंग हायरार्की में कहीं ना कहीं लंबित है। ये तो आपको जो साल का मिसिंग था, वो जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनसे तो पूछिए, उन्होंने लिखा भी था कि नहीं लिखा था। नहीं सर, लखनऊ में से पहुंची है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा? ये पहुंची है तो कस्टोडियन के पास जरूर होगा। पहुंची है तो कस्टोडियन है आपके AO का नाम है मिस्टर महफूज। इनफैक्ट आप अगर डायरेक्टरी खोल के देखेंगे जो इसमें सुविधा है, तो उसमें आपको CIT एडमिन ऑफिस में महफूज का नाम भी दिखाई दे जाएगा। नाम, फोन नंबर एंड मिस्टर अंकुर पांडे। नहीं सर, मैं वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। मेरा मोबाइल पर बैटरी चली गई थी। मैं ITO सीतापुर हूँ TDS में। जी जी सर, मैंने स्पैरो में अपना इस बार का वो भरा था सर, अपार भरा था।
तो उसमें सर ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने भरी थी, वो बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारे प्रिंसिपल सी बरेली में चली गई थी। तो अब सर जो लखनऊ में जो प्रिंसिपल सीसी ऑफिस है, वहां पे सर उसमें एक वर्कशीट अलग से जनरेट हो गई है। तो उसमें सर क्या, का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। स्पैरो के लिए आपको नील रंजन चक्रवर्ती जी से बात करनी है, और नील रंजन चक्रवर्ती जी का फोन नंबर आपको यही वृक्ष से ही डायरेक्टरी में मिल जाएगा। ठीक है। बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, मिस्टर चक्रवर्ती अंडरस्टैंड स्पैरो वेरी वेल, तो मेरे को नहीं लगता कोई समस्या आएगी। एक बार बात करके देखिए उनसे। ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू सर। थैंक यू। दयानंद कुमार। और सर मुझे अब और कोई रेज्ड हैंड दिखाई नहीं दे रहा है। Sir, I can see one Anand Shukla. गुड आफ्टरनून सर, इंस्पेक्टर आनंद शुक्ला फ्रॉम फैजाबाद। जी सर, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मोबाइल ऐप से लॉगिन करते हैं तो एक एरर, फ्रिक्वेंटली एक एरर आता है 503, वेराज जब अदरवाइज लॉगिन करते हैं तो वो एरर नहीं आता और ऐप ओपन होता है सर, फ्रिक्वेंटली आता है। ओके, मैं समझ सकता हूँ। तो क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली आने के बाद भी किसी का माइक्रोफोन खुला हुआ है। हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि दिल्ली में आने के बाद भी मैंने बहुत बार खोला है, खुल गया है। बट जो आप कह रहे हैं वो भी सच हो सकता है, क्योंकि बहुत तरीके के मोबाइल्स हैं। कंप्यूटर्स में तो विंडोज के 2-4 वर्जन ही है, विंडोज 10, विंडोज 2007 एक्सेट्रा। मोबाइल में बहुत वैरायटी है। तो कई बार होता है कि किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल पे चल रहा है उसमें एरर आता है। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने मोबाइल से जरा इनको मेल कर दें रविशेखर चौधरी को, सो दैट ये जो डेवलपर है उसको भेजा जा सके, वो एग्जामिन कर लेगा कि किस वजह से नहीं हो रहा है। और आपके किसी साथी के मोबाइल में अगर खुल रहा है तो ये इसका मतलब मोबाइल स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगी। तो अगर आपके कोई कोलीग का देखिए उनके यहाँ खुल रहा है क्या। तो दैट इज द सजेशन। कोई इमीडिएट आंसर नहीं है मेरे पास इसका समाधान करने के लिए, बट दैट इज अ वे फॉरवर्ड परहैप्स। थैंक यू जी। बताइए, एनीथिंग एल्स? हेलो जी, हेलो। यस प्लीज। हाँ सर, अभिषेक बोल रहे हैं सर, मऊ से। सर एक्चुअली सर लॉगिन में काफ़ी समस्या आती है सर। इवन सर अगर आप जैसे अभी अपने वृक्ष पे जब आप लॉगिन कर रहे थे तो आपके नीचे सर वो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आया था, बट हम अपने एप्लीकेशन के थ्रू अगर मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो मोबाइल में वहाँ फॉरगेट वो पासवर्ड का नहीं है अभी। वो अच्छा नेक्स्ट वर्जन के लिए एक डाला गया था कि मोबाइल में भी फॉरगेट पासवर्ड होना चाहिए। अभी फॉरगेट पासवर्ड जो है वो केवल वेबसाइट पे है। यू आर राइट, वो लेकिन फर्दर डेवलपमेंट्स में लिस्टेड है। अच्छा आप मोबाइल से सर अभी के लिए यू बियर विद अस विद द सॉफ्टवेयर जो अभी बना है उसमें एक बार वेबसाइट पे जाके, क्योंकि सभी के ऑफिस में कंप्यूटर्स हैं, एक बार वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करके देखिए, फॉरगेट पासवर्ड करके देखिए। पहले सर ये आई होप। लॉगिन होता था दोनों पे, जो भी जी जी हमें पासवर्ड मिला था अपने जी। एम्प्लॉय कोड से हम वृक्ष और तक दोनों पे लॉगिन कर लेते थे, बट अब कुछ दिनों पहले से जो है सर तो ये जो मैं वृक्ष पे समझ पा रहा हूँ कि लोगों ने कुछ login, तो एक कोई जनरल फीडबैक लेते हुए ये अभिषेक चौधरी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें एक बार थोड़ा सा टेस्टिंग हुआ कराएं कि क्यों हो रहा है ऐसा। इसको एक बार चेक कराने की आवश्यकता है कि मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है। एनीथिंग सर हमारे यहाँ और ही रिलेटेड टू अदर देन लॉगिन इश्यूज? लॉगिन एक जनरल प्रॉब्लम के तरीके से इसको टेक अप कर लेते हैं। सर हमारे यहाँ और ही बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं, जैसे हेलो नोटिस सर्वर हो गया, प्यून। हाँ हेलो 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 हेलो, हाँ जी, मैं सुन नहीं पा आ रहा रही था है अभी, सर आवाज? कुछ थोड़ा सा आ इंटरनेट की समस्या है। हेलो हेलो हेलो
No, I'm not able to hear. हाँ, अब बोलिए, नेटवर्क ठीक हो गया है। हेलो 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 सर मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, शायद कुछ नेटवर्क इशू है। आई थिंक सर 1 hour 44 मिनट का सेशन हो गया ये, so we can close. I have a meeting at 1. 10 मिनट बचे हैं। Okay, sir, I take this opportunity to Hello, Mr. express my gratitude to you at this point of time. And in fact, I would like to make a request to our JDIT sir, Shri Surendra Mohan, to say a few words at this point of time. Good afternoon. Good afternoon, sir. I myself Surendra Mohan, JD1, DTRI Lucknow. Sir, please accept my sincere thank on behalf of all the participants and team DTRTI. Sir, it was very informative and interactive session. And if I go by the number of queries raised at the end of the session, definitely this particular session received the highest TRP since I joined this institute. Sir, your love for technology and is well known in the corridors of ours, and your love and affection for solving everyday's administrative problem through the help of information communication technology is well known and well appreciated. Sir, you taken as valuable you spared some valuable time for us for this particular session, and for that please accept my thanks on behalf of everyone, participants and team DTRTI. Thank you very much, sir. Thank you so much. Have a good day. Bye. We request the participants to kindly join us back at 3 p.m. for the next session. In between, you can continue with your official duties. Thank you very much for having attended this session, and keep going strong and nice as always. And join us back at 3 p.m. The link is same, so you can